So, anyone has any sharing for yesterday when we did that practice for three people in our life? We have 5 minutes. No one felt anything yesterday. कम अगेन मिन्नल दी आपका आवाज नहीं आया, क्या बोले आप अभी ने? हेलो, हाँ अभी बोलिए. I asked कि कल किसी की कोई feeling हुई when you did that exercise for three extraordinary people who made a difference in your life. If anyone wants to share their feelings, how they feel, we can do it now. We still have 5 minutes to start the session. Reading. सुनाई दे रहा है ना प्रियंका? Yeah. So yes, I did the this practice, and yeah. So it was late in the evening after my office was over, but I went to the terrace क्योंकि घर पे क्योंकि सब रहते तो मेरे को वो concentration नहीं होता, तो I just went to the terrace and I just did that. तो मेरे मतलब I just kept on talking, बस उसके बाद थोड़ा हल्का लगा, तो I felt light. I would say मेरे को light feeling हुआ, and immediately हुआ in fact. गुड. इमोशंस में बहुत शिफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हमको पता चलता है ये करने के बाद में. शायद हम कभी इतना ग्रैटिट्यूड दिए नहीं हैं उनको जो डिज़र्व करते हैं, और इसी तरीके से सही व्हेन वी गिव वी फील द लाइटनेस. एनीवन एल्स? I hope everyone did it. मैंने किया, but I don't think it was with that feel. Meaning, these people who are important, उनको बोलते तो है, तो means I think I'll do it again. तो Because मतलब if you felt the lightness or if you felt that a burden has been taken from you, then it is fine. और अगर you did it in हड़बड़ी कि बस अब ये करना है practice, so then you will not feel. so I don't know, because generally, we have acknowledged the help of these people, whatever they have given. So that's why I don't know what it was, but I didn't feel that much different. Means yes, to me it felt, I was happy that I was recalling what they did for us, and then internal say और gratitude की भावना आ रही थी, but emotional feeling towards them was not there. It was more about me being more in gratitude, remembering the help that they had provided. See, If I you will know what I also, mean. yes, I can understand, because see, I have done this yesterday for the third time. So the first time when I did it was very intense. I had tears in my eyes when I did it for the first time. तब ये समझकर कि इन लोगों ने मेरे लिए कितना किया है, ये समझ के I had tears in my eyes. Now the second time was less intense for me because I had already paid my gratitude to the three people who were very, very important. But the second time I chose three different people. So just to गड्ढा भरने के लिए कि जिनको मैंने नहीं किया, three random people who have just given me some kind of push in my life. Yesterday what happened with me was I sat, I thought I won't be disturbed, and I did for two people, and then I was like, I was getting very emotional, and at the very time I was like called by my mother-in-law, so I had to stop that practice right there. Now when I did when I did it after some time and I again took the three peoples, I had already crossed that line. मैंने पहले दो जन के लिए मैं कर चुकी थी, तो मुझे वो इंटेंसनेस मेरी चली गई थी.
तो yesterday I also realized कि क्यों हमें एक साथ करनी चाहिए. अब मैंने ऑलरेडी कर दिया था, मेरी इंटेंसनेस ऑलरेडी आ चुकी थी और जा चुकी थी. तो when I did it for the second time, I did again for the 3 people. बट फिर वो मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई एम हैप्पी कि ये तीनों मेरे लाइफ में है, जैसे कि मिनलिस्ट से. तो सेम फीलिंग आई हैड. आई वॉज लाइक हैप्पी एंड आई वॉज कॉन्टेंटेड कि ये मेरे लाइफ में है, मैं इनसे टच में हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं. तो फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स है, जैसे भी जिनको भी मैंने चूज किया था, तो इट वाज नॉट समथिंग intense for me also yesterday, but it was something that I felt very very happy about, very very happy about. तो yes, अगर आपको कोई भी बहुत strong feeling आ रही है, happiness is also a strong feeling, and actually if you are feeling happy and satisfaction, so you are going above the line. So yes, even that counts. This gratitude have made you feel that way. They have taken you to a positive zone. So it is worth that also. That is also worth. तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो. बेसिकली ऊपर जा रहे हो तो ठीक है, जितना भी ऊपर जा रहे हो. समटाइम्स वी इवन फील द लव फॉर द पर्सन कि मतलब यू जस्ट फील लाइक हगिंग देम, कि कहीं मिल जाए आपको तो आप उनको हग कर लो या उन्हें बहुत प्यार दो कि उन्होंने आपके लिए इतना किया है. तो वो सारी फीलिंग्स जो अगर आपको पॉजिटिव जोन में रखती है और आपको आ रही है, तो इट इज वर्थ द प्रैक्टिस, आई वुड से. टाइम हो गया है, तो वी विल जस्ट स्टार्ट द chapter now, and then we will continue with the yeah. Yes, Minal. Mhm. One second. Okay. Day 13, make all your wishes come true. So make all your wishes come true. अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलिए. It's very simple. आज हम जो डे 0 पे हमने जो लिखा था अपनी ड्रीम्स, आज हमें ये चैप्टर वापस उन ड्रीम्स के पास लेके जाएगा. कैसे करना है, क्या करना है, वो चैप्टर बताएगा हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे. बट द पॉइंट इज कि आपको उन सारी विशेस को अपने ट्रू लाना है, मेक करना है. मेक, you have to stress that, we have to put that stress on the word make. मतलब आपने ड्रीम की है, आप ग्रेटिट्यूड मोड में आ चुके हो, लेकिन आपको अपने कर्म तो करने पड़ेंगे. कर्म करे बिना आपको ड्रीम्स आपकी पूरी नहीं होगी. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. मेक मतलब आपको उस तरफ अब स्टार्ट करना है, उस तरफ अपना अपना चलना, अब उस तरफ आपकी वॉक अब स्टार्ट होगी कि कैसे आपको करना है. आपने नींव खोद ली है अपने ड्रीम्स. जैसे अब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम नींव खोदते हैं. तो हम लोगों ने आज 12 दिन से नींव खोदने का काम हमने कर दिया है. हमें पता है कि हमें ग्रैटिट्यूड कैसे कैसे कहाँ कहाँ किसे किसे देना है. हमने पास्ट के सारे गड्ढे अब भर दिए हैं. तो अब हम फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इट मीन्स. Yes, so this picture, Minal, what you can make out? I think this is a picture perhaps near a closet or something. Staircase के पास में कोट है या हैंग मींस जैकेट टाइप का है. पॉकेट से मैजिक शाइन आ रही है. इट इज बेसिकली जब हम घर में घुसते हैं और शायद हमारे वहाँ पे like probably in more than an English country kind of homes, you have pegs and all in the entrance only, and you hang your coats and everything there. And उसके pocket में actually एक list है, if you can see that list. This is the list. And उसमें से the magic dust or the sparkles is coming out. तो इट इज कि अब आपके ड्रीम्स आपके पॉकेट में हैं और आप उन्हें अब पूरा करोगे. इट इज दे आर देयर इन योर पॉकेट, समथिंग लाइक दैट, कि आपके पॉकेट में आपकी पूरी दुनिया है. उस तरीके से ये हमें समझा रहा है कि कैसे हम अब अपने ड्रीम्स को अपने साथ लेके चलेंगे और उन्हें धीरे 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 पूरा होते हुए देखते जाएंगे. कैसे देखेंगे वो अब शुरू करते हैं. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. हमारी जो इमेजिनेशन है,
हम उस इमेजिनेशन के द्वारा कहीं पे भी जा सकते हैं. एंड इफ यू आर फेमिलियर विद द स्टोरी अलादीन, बहुत बहुत मतलब बच्चे लोग तो आई थिंक देखे ही होंगे एंड बड़े भी अलादीन की स्टोरी से सब वाकिफ है कि उसके पास में एक जादुई गलीचा था जिसके कारण वो कहीं पे भी कभी भी जा सकता था. तो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग कि एक्चुअली जो इमेजिनेशन होता है, जो हमारी कल्पना की दुनिया होती है जहाँ पे हम सोचते हैं, विचरण करते हैं, वो ही सबसे सच्चा हमारा कारपेट है, जादुई कारपेट है, जिसके कारण जिसपे हम बैठ के कहीं भी किसी भी दुनिया में जा सकते हैं. तो ये सिंपल है कि आपका जो इमेजिनेशन है उससे आपको इतनी स्ट्रांग करनी है, इतनी स्ट्रांग करनी है कि आप कहीं पे भी जा सको और कुछ भी पा सको. यहाँ पे लिटरल मीनिंग है कि कुछ भी पा सको उस मैजिक कारपेट के पे सवार होकर. तो इमेजिनेशन की दुनिया में जाके हम कुछ भी पाने की ताकत रख सकते हैं. यस. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Yeah, I've already said this that you have built a foundation for yourself now by being in continuous practice for 12 days. तो अब हम चल रहे हैं, we are moving towards our dreams, और उसको ग्रैटिट्यूड के कैसे जादुई पावर से, शुक्राना के जादुई शक्ति से हम उसे कैसे हासिल करेंगे, ये बात अब हमें अब पता चलेगी कि कैसे हम करेंगे. कंटिन्यू प्लीज. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. So the writer is simply telling us कि कैसे पहले से थैंक्स दिया हुआ is more effective than कि बाद में दिया हुआ. और हम बहुत बार ये खुद भी करते हैं. अगर हम अपनी दिनचर्या में देखें तो हम जब मंदिर में जाते हैं और हमें कुछ चाहिए होता है तो हम प्रॉमिस करके आते हैं भगवान को कि ये मेरा ये काम कर दो तो मैं ये कर दूंगा आपको, मैं आपको इतना सवा मनी का प्रसाद चढ़ा दूंगा या वैसे. Okay, we are doing something, some kind of barter system with the god, but that is our way of thanking him beforehand. कि हम promise कर रहे हैं कि हम ये चीज कर देंगे आपके लिए. That is separate, but अगर हम अपने पुराने जमाने के ceremonies में जाएं तो you will also find कि people performed यज्ञ. जैसे अगर अगर हम महाभारत या रामायण काल में जाएं तो देयर आर इंस्टेंसेस की वो अश्वमेध यज्ञ होता था जहाँ पे यज्ञ करने के बाद में दे यूज्ड टू लीव अ हॉर्स, और वो हॉर्स जिस जिस टेरिटरी में जाता था वो टेरिटरी राजा की हो जाती थी जो जिस राजा ने किया है. और अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको वो हॉर्स को पकड़ना पड़ेगा. अगर आपने वो हॉर्स को पकड़ लिया तो यू हैव चैलेंज द किंग एंड देन द किंग विल कम एंड फाइट विद यू एंड he will win the war due to his fight afterwards if you are taking captive the horse. Now what was this yag all about? This yag was actually giving thanks to the सुप्रीम पावर्स कि वो जीते. वो पहले से ही वो परफॉर्म कर लेता था एंड जनरली जब ये यज्ञ जो करता था वो जीतता ही था. they were so powerful that no one could challenge them. And then also अगर recent time में देखा जाए तो there is a story in Hindu mythology, if few people have come across it, कि कृष्ण भगवान ने एक माउंटेन को कैसे भगवान बना दिया. If anyone is familiar with this story, जनरली दिवाली के बाद हम गोवर्धन पूजा करते हैं. गोवर्धन पूजा इज द पूजा ऑफ एक्चुअली अ माउंटेन. हमारी भाषा में उसे माउंटेन नहीं बोलते, हम उसे गिराज जी बोलते हैं.
but it is इंद्र की पूजा ना करके उन्होंने माउंटेन की पूजा की, क्योंकि उनके हिसाब से द माउंटेन इज द मेन रीजन की बारिश होती है. Everyone know the geographical and the scientific effect of the mountain on the clouds and on the rain, how it happens, when, why it happens. तो उन्होंने माउंटेन को तवज्जो दी इंद्र से ज़्यादा, एंड ही शिफ्टेड एवरीवन्स थैंक्स गिविंग टू द माउंटेन. एंड वो प्रथा आज तक चल रही है. हम सभी उस समय माउंटेन की पूजा करते हैं, उनको थैंक देते हैं रेन के लिए एंड फॉर एवरीथिंग दैट द माउंटेन गिव्स अस, द trees, the fruits, the shelter to the people in its caves and everything. तो we can see हर कल्चर में ये चीज़ है कि पहले थैंक्स देते हैं. हमारे आदिवासी इलाके में भी अगर हम जाएं, इंडिया के आदिवासी इलाके में, तो यू विल फाइंड सो मैनी इंस्टेंसेस एंड सो मैनी थिंग्स जहाँ पे हम पहले थैंक्स देते हैं एंड बाद में हम वो काम करने चाहते हैं. और रेन के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत गाना बजाना एंड ये सब होता है, एंड देन द रेन कम्स एंड इट इज अ गिवन थिंग. मूवीज शायद लगान में भी ये चीज डिपिक्ट की गई है. तो वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस. किसी के और अगर आप डिस्कवरी चैनल में जाके डॉक्यूमेंट्रीज देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगे about the practices these people do, or African tribes or American Indians are doing before they get anything. They are performing rituals and rites to make everyone, the nature, happy, so that they get things in return. So this is basically for the nature, but we will be doing for ourselves. We will be paying the gratitude beforehand, which we have already started doing, to thank in advance for what we will be getting in future. That is what this book is trying to tell us. Yes, Age? The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. Yes. So she is directly एकदम साफ शब्दों में वो लिख रही है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहता है कि समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ. जो फोर्स है वो अपने आप जिस चीज की आप इमेजिनेशन कर रहे हो, वही चीज आपके पास वो खींच के लाती है. अगर आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो, अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में रह रहे हो, तो वो आपके लिए और नेगेटिव चीजें लेके आएगी और नेगेटिव फीलिंग्स लेके आएगी. अगर आप पॉजिटिव फ्रेमवर्क में हो, माइंड में हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव चीजें ले आएगी. नाउ यू हैव टू फील बिफोर हैंड कि इट इज योर्स टू मेक इट योर्स. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it is yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. तो she is saying कि आपको अगर iPad चाहिए रिसेंट वाला, तो आपको ये इमेजिन करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है और आप उस पर अपना काम कर रहे हो. You have started using it. You are already into it. You have it in you are taking it with you everywhere, and then the universe will give it to you, because यूनिवर्स यही देख रही है कि वो आपकी सोच के साथ अपना सोच मिला रही है, एंड वो यही देख रही है कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज है, तो वो आपको दे देगा. कैसे देगा ये आपकी बॉदरेशन नहीं है. क्यों देगा ये आपको सोचना है. आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्यों आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको यूनिवर्स वो चीज आराम से दे सके. इन सब को करने के लिए सबसे आसान तरीका है शुक्राना करना. ये जो फीलिंग्स है उसे लाने का सबसे आसान तरीका है शुक्राना करना. Easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. तो आपको शुक्रिया मोड में रहने के लिए आपको अब ट्रेनिंग मिल चुकी है. आपको पता है कि आप कैसे कैसे किस किस वक्त क्या क्या चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हो या फील कर सकते हो.
If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. सो क्लियरली दिख रहा है कि जिसके पास भी अभी शुक्राना है उसके पास फ्यूचर में अबंडेंस रहेगा. इट इज गिव एंड टेक पॉलिसी कि आपके पास अगर आप शुक्रिया फील कर रहे हो या आप उस मोड में आ चुके हो कि जहाँ पे आपके पास नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, तो जब फ्यूचर में आपके पास में सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी which will attract your dreams to you. That is very simple. ये scriptures बोल रहे हैं, ये writer भी नहीं बोल रही है. ये she has studied the scriptures, the tablets, whatever is available to her, and after intense studying, she has reached to that conclusions कि क्या हमें scriptures खुद बोल रहे हैं. तो we can see how now she will unfold the chapter to us. Let's move forward. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Yes. Most people. Just a second. तो जो चीज़ हम आज तक करते आ रहे हैं, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैव डन दिस कि पहले हम भगवान से मांगते हैं, जब वो हमें मिल जाती है तो हम जाते हैं और फिर हम थैंक यू बोलते हैं भगवान को कि थैंक यू फॉर गुड मार्क्स, भगवान आपने मुझे दे दिया, थैंक यू फॉर अ गुड हस्बैंड. ओके, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट अगर हम पहले से ही कर ले ये काम, पहले से अगर हम बोल दें कि थैंक यू, I have scored good marks in my examinations, thank you, I have a good life partner in my life or an excellent life partner, so you are attracting the marks and the life partner in your life without asking the God. तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कभी भी. एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जब पाने के बाद में आफ्टर रिक्वेस्टिंग when we have gained that thing we forget to pay our thanks. जो छोटी छोटी चीजें रहती है जिनके लिए हम भूल जाते हैं थैंक यू देना, हमें याद नहीं रहता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी हमें थैंक यू फील करना चाहिए. वी जस्ट फॉरगेट दैट पार्ट. किसी का चालू है क्या माइक? देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड. यस, नाउ इट इज स्टॉप. तो हम हम भूल जाते हैं. तो इस चीज को कि हम भूले नहीं, इस चीज के लिए हमें पहले ही शुक्रिया बोल देना चाहिए. एंड इट इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन व्हेन यू आर सेइंग इट आफ्टरवर्ड्स. यस. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. तो हम जब बाद में ग्रेटफुलनेस दे रहे हैं वो दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड, बट अगर हम पहले भी दे दें तो वो और बेहतर होगा. एंड इट विल बी मोर पॉजिटिव फॉर अस एंड फॉर आवर ड्रीम्स टू कम ट्रू. बिकॉज कभी ना कभी हम बाद में देना तो भूल ही जाते हैं, किसी न किसी वक्त हमें याद नहीं रहता है कि हमने क्या किया, हमें कैसे मिला, एंड वी जस्ट फॉरगेट, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. अगेन this happens because we take things for granted and we forget to thank for certain things in our life, which will not happen if we are always in a gratitude mode, and we will be like blessed more and more with our dreams and our desires through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand. You must immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you're fulfilling your part. If you continue to hold on to that image and feeling, you will magically receive your desire. Just a second. Again, the book is telling us कि हमको अगर किसी भी चीज को फील करके हम करते हैं कि हमारे पास वो ऑलरेडी है, तो वो अपने आप हमारे पास मैजिकली जादुई तरीके से हमें मिल जाएगी. कैसे मिलेगी हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें मिलेगी. बट हमें पहले से उसे फील करना है. वी हैव टू इमेजिन इन आवर माइंड दैट वी हैव इट. It might be anything. We will go into the examples later,
but just imagine कि you want something right now and you keep imagining about it. तो 110% चांसेस है कि अगर आपने ग्रैटिट्यूड किया है और अच्छे से किया है तो वो आपको मिलेगी मिलेगी। अगर आप उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड करते हो और बाद में करोगे, जब आपको मिलने वाली है उसकी बात करोगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अगर अगर आप पहले से थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू आई हैव दिस, थैंक यू आई कैन use this thing for certain things, like thank you I have the book, तो you will get it somehow, the gift के रूप में आएगा, कैसे भी आएगा। this we have been studying, like we have come across so many things कि जिसमें हमें बार बार बोला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये अभी तक भी हमें यही चीज समझा रहा है कि हमें ग्रैटिट्यूड में क्यों रहना है, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड के कारण ही वी आर one step closer to realizing our dreams. आगे You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. यस, जस्ट अ सेकेंड, हम सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। और अगर हम दो दो तले से कूदते हैं या 10 तले से कूदते हैं या कहीं से भी जंप करते हैं तो वी नो वी विल बी गोइंग डाउन। हम क्या उसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? कभी भी हम उसके बारे में सोचते हैं? हमने साइंस में पढ़ लिया ये लॉ है एंड हमने उसे अपने मन में उतार लिया कि ये लॉ है। अब हम उसके बारे में कुछ भी सवाल या जवाब नहीं करते। हमको पता है कि अगर हम बॉल दीवार पे मारेंगे तो वो वापस हमारी तरफ आएगी, बिकॉज इट इज लॉ। लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई एक्शन किया है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। तो वी नो, अगर लॉ की तरफ से जाए तो वी नो कि इफ वी आर थ्रोइंग समथिंग on the wall, it will rebound and it will come back to us. If we know, if we throw the ball on the ground, it will rebound and it will come back to us. We know if we are throwing an apple upwards, you can catch it, it will come back to us. तो ये सब जब हमें पता है and we are not questioning them, we are not questioning these laws, we are not questioning the science behind it. So even law of attraction is a science. Always remember that this law of attraction is a science, it is a proven science. So we should not question it, we should trust it, and then we will get what we are desiring, what we have the desires for, what our desires are, sorry, we will get that things. तो ये बस ऐसा ही है कि उसने एग्जाम्पल दिया है राइटर ने कि जब आप बाकी साइंटिफिक रिसर्च को या साइंटिफिक फैक्ट्स को अगर आप नहीं क्वेश्चन कर रहे हो तो we must trust this science also and we should not question it also. Likewise, Likewise, you must trust and know that when you're grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. yes, so I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया है कि what we are trying to establish basically is कि आपकी जो dreams है वो आपकी पूरी होगी। आपको क्वेश्चन हाउ नहीं पूछना है, आपको हाउ क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए, आप वाई को स्ट्रांग बनाओ कि मुझे 2 करोड़ चाहिए क्योंकि मुझे मेरा घर बनाना है, मेरे घर में मैं रहना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरा घर बने, उसमें मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा रहे। आपको वाई पे जाना है, आपको हाउ पे नहीं जाना है कि अभी लॉकडाउन है कैसे आएंगे 2 करोड़ रुपए, नहीं, वो आपका काम नहीं है। हाउ के बारे में सोचना कि कैसे आएंगे सोचना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी ये आपको बिलो द लाइन लेके जाएगा। बेसिकली क्या होता है जब हम हाउ के बारे में सोचना शुरू करते हैं हम चिंतित हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो हमें हाउ के बारे में एकदम भी नहीं सोचना है, हमें खाली अपनी ड्रीम्स बनानी है और उन्हें बहुत पावरफुल बनानी है। वो पावरफुल तब बनती है जब हमें वाई पता हो, किसी भी चीज की जब हमें वाई पता होती है तो वो पावरफुल बनती है। नाउ वी आर एंटरिंग द एरिया वेयर द रियल वर्क स्टार्ट्स। इसके बाद अब व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ, दिस इज वेयर वी आर एंटरिंग कि हम अब ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं, हम उस मोड में आ चुके हैं कि हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम वो सब कर चुके हैं। तो अब हमें ड्रीम्स को कैसे रियलाइज करना है वो हमें बताया जाएगा। कैन यू हियर मी विनल? What? Your voice was breaking a little bit.
but Yes, it's okay now. yeah, my internet connection was not stable. It just showed me a message. Okay. Uh, What do you want most right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the lists that you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. just a second. See, मैंने बोला था इस बुक के हिसाब से कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं आप एक जगह लिख लो डिफरेंट एरियाज के अगर आपको ब्रेक में लिखना है हर पेज में अलग लिखना है जैसे रिलेशनशिप के बारे में आपने लिखा आपने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में लिखा है आपने अपने वेल्थ के बारे में लिखा है मटेरियल डिजायर्स के बारे में लिखा है जो भी आपने लिखा है आपने लिख लिया है अब तक शायद आपने उनकी पेजेस भर दिए होंगे शायद आपके पास में अभी 30-40 ड्रीम्स होंगे कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे कुछ इमीडिएट रियलाइजेशन के लिए होंगे कुछ लेटर रियलाइजेशन के लिए होंगे थ्रू आउट द ईयर्स मतलब मे बी जैसे अगर आपको घर बनाना है तो घर तो अब आपका कल तो नहीं बनेगा ना आपने ड्रीम सोच लिया है कि मुझे मेरा घर चाहिए खुद का कैसा चाहिए क्या चाहिए ऑल इज देयर बट अब आपके पास वो घर बनाने का जो ड्रीम है इट विल टेक टाइम टू रियलाइज तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म ड्रीम अब आपके पास में शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी होंगे जैसे आप suppose करो you are going for an interview and you want to pass it with flying colors you want to get that job so that interview is going to happen in 2-3 days time so your dream includes that dream also so even that is a dream which is a short term dream जो आपकी complete हो जाएगी so now what you have to do is you have to select 10 dreams from the dream list it might your dream list might have 40 dreams or 20 dreams or 50 dreams depending on what you have written so उसमें से आप अपने top 10 dreams select कर लीजिए it can be long term also it can be short term also ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या pick करते हो 10 the dreams which you really 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 want to happen right now भी हो सकता है right in 1 month भी हो सकता है right in 6 months भी हो सकता है right in 10 years भी हो सकता है मतलब achievement उन dreams की तो जो भी है उनको आप सिलेक्ट करिए ठीक है उसमें से तो यस आगे चलते हैं So you can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 areas, 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. सी अब इसमें ये क्या बोल रही है बुक हमें कि या तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया से अपनी ड्रीम्स चूज करिए कि कोई आपका रिलेशनशिप आपको अच्छा करना है कि आई वांट माय रिलेशनशिप विद माय ब्रदर टू बी वेरी गुड तो वो आपकी एक ड्रीम है उसे आप सेलेक्ट कर लिए और फिर आपने एक ड्रीम अपने मनी एरिया से सेलेक्ट की कि आई वांट टू अर्न मेरा अर्निंग होना चाहिए इतना रुपया पर एनम या पर महीना जो भी है तो वो आपने सेलेक्ट कर ली फिर आप गए आपने अपने लिए अपने बच्चे के लिए एक ड्रीम जो लिखी थी वो सिलेक्ट कर ली तो दैट डिपेंड्स ऑन यू आप ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सिलेक्ट कर रहे हो और यू कैन डू समथिंग लाइक कि आप सारी ड्रीम्स एक ही एरिया से सिलेक्ट करो जो एरिया आपको लगता है कि आपको इस एरिया पे वर्क करना है कि जैसे कि अगर वर्क एरिया है तो आई वांट टू स्टडी एंड प्रोक्योर इतना परसेंटेज उसके बाद में आई हैव गॉट एडमिशन इन दिस स्कूल उसके बाद में आई एम स्टडिंग लॉ एंड फ्रॉम दिस प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज उसके बाद में आई हैव बिकम अ लॉयर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ इन दिस कंपनी तो ये सब भी ड्रीम्स है जो स्टेजेस में है जो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आप देख सकते हो कि अगर आपको इमीडिएटली जैसे देवांशी ने कल पूछा कि क्लास 10 के एग्जाम में मुझे 90% चाहिए तो वो इसका इमीडिएट रियलाइजेशन ड्रीम होगा which she will be appearing for class 10 next year March में तो it is like 3 months के time में she wants to realize that dream तो वो भी ड्रीम हो गया अब उससे कनेक्टेड she has written all her dreams and she wants to realize them तो वो उन 10 ड्रीम्स पे वर्क करेगी तो इट इज ऑन यू कि आप कैसे क्या पिक करते हो अपने ड्रीम्स में लेकिन आप ये सोच के रखना कि आपको अपनी टॉप 10 डिजायर्स चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो आपको पिक करना है अब उसमें से ये बुक नहीं बोलेगी ये चीज और अगर लेटर ऑन बोलती है तो मुझे याद नहीं है बट इन पावर इट इज लिटरली देयर
कि वो जो 3 ड्रीम्स है ना, उसमें से भी वो 10 ड्रीम से भी जो 3 ड्रीम्स है जो टॉप मोस्ट है आपकी, वो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए आज के बाद से। अगर आपका ड्रीम है कि आपको लॉयर बनना है, तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे आप कुछ और भी कर रहे हैं, पढ़ते समय, लिखते समय, सोते समय, नहाते समय, बैठते समय, खाते समय, you are either giving your gratitudes or you are thinking about your dream. These top 3 dreams you have to decide today and you have to keep it in your mind, and आपको उनके बारे में सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। What you will be doing is why सोचते रहना है, we will come to it later, अभी आ जाएंगे थोड़ी देरी में। बट मैं आपको अभी बता रही हूँ कि वो 10 ड्रीम में से भी आप 3 को टॉप मोस्ट को सेलेक्ट कर लो और उनके बारे में सोचते रहिएगा आज के बाद से। 10 ड्रीम तो है ही, उनके बारे में क्या करना है वो भी ये बुक बताएगी, लेकिन ये जो 3 ड्रीम्स है उनके बारे में आपको सोचते रहना है। क्यों ये बुक नहीं बताएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि बिकॉज you will be very close to them, you will keep visualizing them, which is a very strong tool for manifestation of your dream, visualization। तो आपको उसके बारे में सोचते रहना है अब से, ताकि वो आपकी पूरी हो। हाँ, आगे चलते हैं मिनल। Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Yes, so it is saying कि आप जितने क्लियर रहेंगे और आप जितने स्पेसिफिक रहेंगे, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर बोल दिया कि Mrinal, आप, हाँ, यस, नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो? Mrinal, if it helps, actually you may switch off your video. कई बार वीडियो काफी bandwidth ले लेता है. Okay, so how do I switch it off now? How do I switch it off? Hello? Hello? Can you hear me, Minal? Yeah, I can. See, how do I switch it off, my video? I mean, नीचे Zoom में होगा ना, एक mute button रहता है और एक stop video वाला रहता है on the Zoom screen. now actually I am having that gallery, वो side view. खाली 4 जनी मुझे दिख रहे हैं साइड में, उसमें से नहीं, one you is, are on the different side. You just मतलब वो नीचे जो डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं ना, हाँ, you click on the first dot. stop video. Okay. Yes. Yes. Can you hear me now? Yes. Yeah. So where were we? Thank you, Sunita Diti. Be very clear वाला sentence. Yes, be very clear. तो आपकी जो ड्रीम है ना, वो जितनी स्पेसिफिक होगी, जितनी क्लियर होगी, यूनिवर्स को उतना जल्दी समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए। अगेन यहाँ पे आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ द रेस्टोरेंट, इफ यू रिमेम्बर इट। आप खाना खाने गए हो, आपने ऑर्डर किया है, आपने बोला वेटर को कि जो भी तुम्हारे पास अच्छा है तुम ले आओ, एंड यू आर अ वेजिटेरियन। नाउ वो वेटर गया अंदर, उसके होटल की सबसे अच्छी डिश जो है वो नॉन वेजिटेरियन डिश है, वो आपको लाके दे दिया। नाउ व्हाट विल यू डू? विल यू ईट इट? ऑब्वियसली नो, यू विल नॉट ईट इट, एंड देन यू स्टार्ट ग्रम्बलिंग। फिर आप चिंता में चले जाओगे कि ये तो यार मुझे ये लाके दे दिया। यू विल बी डिसअपॉइंटेड। उसने ऐसा क्यों किया? आप कभी इस बारे में भी सोचिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उसको नहीं बोला था कि मुझे आपकी बेस्ट डिश वेजिटेरियन डिपार्टमेंट में चाहिए। आपने उसे जिस तरीके से बोला, उसने आपको लाके दे दिया। वैसे ही है, अगर आप यूनिवर्स को बोलते हो कि आई वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, तो ये बहुत बड़ी ड्रीम है, वो आपको कहीं पे भी ले जा सकता है, वो आपको पाकिस्तान भी ले जाके छोड़ सकता है। तो डू यू वांट टू गो टू पाकिस्तान? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कहाँ जाना है। सेम वे, अब पाकिस्तान में भी आपको कहाँ जाना है, माउंटेन्स पे जाना है या बीचेस पे जाना है? आई मीन नॉट पाकिस्तान, मतलब अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको कहाँ जाना है? आपको माउंटेन्स पे जाना है या बीचेस पे जाना है? हर कंट्री में माउंटेन्स या बीचेस दोनों होते हैं। अगर आपने बोला कि मुझे इटली जाना है, तो इटली इज वेरी वास्ट, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे बीचेस है, वहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे लेक्स है। तो आपको किस एरिया में बेसिकली जाना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, अपने ड्रीम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम इसी ड्रीम को ले कि हमें बीचेस और माउंटेन्स का फर्क समझ में आ गया,
Now what kind of hotel you want to stay in, मतलब आपको लग्जरी होटल में रहना है या आपको बजट होटल में रहना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई। नहीं तो शायद हो सकता है कि आप लग्जरी में रहना चाहते हो और ड्रीम आपको एक बजट होटल में लेके जाके ठहरा दे और उसके बाद में आप उसके लिए ग्रबल करते रहो। आपको टूर में जाना है, एजेंट के थ्रू जाना है, मतलब जितना स्पेसिफाई आप हो सकते हो, जैसे आप हो सकते हो, प्लीज राइट इन योर ड्रीम्स एंड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। जितना वर्ड्स आपके क्लियर रहेंगे उतनी जल्दी आपकी ड्रीम्स रियलाइज होगी। यूनिवर्स आपकी वर्ड्स देखता है, टक 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 आपके वर्ड्स को प्रोसेस करता है। दे आर लाइक कोड वर्ड्स, दे आर लाइक कोडिंग जो होता है ना, कोडिंग, तो वो कोड्स की तरह यूनिवर्स को दिखते हैं एंड वो फटाफट फटाफट उन्हें फिट करता रहता है आपके साथ। तो जैसे जैसे आप जितना प्रिसाइज होंगे उतना आपकी रियलाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा, और जितना आप उसे स्कोप देंगे ज़्यादा सोचने का, उतना आपकी ड्रीम में गड़बड़ियाँ होंगी। आगे चलते हैं। Imagine you're putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because in truth, by using the law of attraction, that magically receives your desire. नहीं 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 Nahi, what? Okay, एक सेकेंड, दैट इज यहाँ से पढ़ना है that's एग्जैक्टली व्हाट। exactly what you're doing. यस, तो बस वही है, अगर आप जितना दे रहे हो अपने ड्रीम में, आप जितना भी प्रिसाइज हो रहे हो, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। नाउ दिस बुक इज गिविंग अस सर्टेन एग्जांपल्स दैट हाउ यू हैव टू राइट योर ड्रीम। बेसिकली ये बुक स्टार्टिंग में नहीं बताती है कि आपको आपके ड्रीम्स कैसे लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, ये भी ये बुक नहीं बताती है। ये मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है आज की तारीख में। जब हम इस चैप्टर पे आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि अब हमने तो लिखा था वांट करके, आई वांट एन आईपैड, आई वांट होम, आई वांट 90% मार्क्स इन माय बोर्ड रिजल्ट्स, आई वांट माय फ्रेंड टू बी वेरी केयरिंग टुवर्ड्स मी। तो ये जो वांट 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 करके लिखते हैं हम, तो वो हमें फिर यूनिवर्स हमें सिर्फ वांट ही देता है, वो हमें इच्छा में ही छोड़ देता है कि हाँ तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें 90% मार्क्स मिले, तो वो इच्छा ही बनी रह जाएगी और तुम्हें 90% मार्क्स मिलेंगे नहीं, बट इच्छा रहेगी, वो हमेशा इच्छा रहेगी। तो दिस इज व्हाई आई टोल्ड दैट डे इटसेल्फ कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ऐसे लिखना है कि आपको वो काम हो चुका है, as if you have already received them. So now this book is giving you a proper format. Present tense के साथ में it is giving you a proper format which you have to follow. This part I didn't tell then because book नहीं बोल रही थी, इसलिए मैंने नहीं बोला basically. तो आप आज ये format देख लो। हाँ नंदन। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. यस, तो रिसीव देम वाला पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन आई सपोज, आई होप, क्योंकि ये आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका है, बोला जा चुका है कि सारे ड्रीम्स आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। अब वो प्रेजेंट टेंस में आपको कैसे लिखने हैं, इसके एग्जांपल्स हम अब सुनेंगे। इसमें आपको कहीं कहीं पे क्यू नजर आएगा कि वाई यू वांट इट, कहीं कहीं पे आपको इन ड्रीम्स में वाही नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाई नहीं सोचोगे। आपके दिमाग में वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं से चलना शुरू करते हैं और हमें एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वी टेक डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स, मे बी वी कैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस थ्रू अ साइकिल, then a certain distance through a car, then we might take a flight or and reach the destination. तो जब final destination आपका clear होता है तो we don't need a why to be written down. It is very clear कि आपका final destination क्या है और आपकी उसमें feelings क्या है, आपका why आपकी feelings के द्वारा बहुत ही strong है, सशक्त है। लेकिन कभी कभी हम फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए जब व्हीकल्स यूज करते हैं, छोटे मोटे बड़े, तो हम फाइनल डेस्टिनेशन का जो वाई है उसे इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वो जो छोटे छोटे व्हीकल्स है वो फटाफट हमें मिल जाए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इट। तो आप मुझे मत पूछिएगा ये सवाल कि इसमें तो वाई नहीं है मृणाल और इसमें वाई है। वाई इज योर चॉइस। अगर मुझे घर चाहिए तो मुझे घर क्यों चाहिए ये सबको पता है कि हाँ मुझे मेरा घर चाहिए,
मुझे अलग से रहना है, मुझे अपनी दुनिया बसानी है, एंड आई वांट टू बी हैप्पी। जब आपका अंत रिजल्ट हैप्पीनेस पे आता है या सक्सेस पे आता है, तो योर वाई इज क्वाइट स्ट्रांग। The why is quite strong, so you don't need to specify it in writing. But अगर आप लिख रहे हो कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, तो उसमें वाई आपका सशक्त होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको वो 90% या 95% मार्क्स क्यों चाहिए, क्योंकि फलाने कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और उसका कट आउट इतना है, इसके लिए आपको इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। तो दिस इज व्हाट we will be working towards now. Okay, let's read the examples. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Yes. तो यहाँ पे इसने इतना स्पेसिफाई, ये जो जितने भी ड्रीम्स है उसमें इतने स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि ये जनरल ड्रीम्स है। इसने खाली एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आपको कैसे लिखना है, बट आपको उस ड्रीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉलेज की जगह देयर शुड बी द नेम ऑफ द कॉलेज विच यू वांट। अगर क्राइस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू for the 90% marks in my exam results which got me into the Christ College. ठीक है, आई वॉन्टेड टू बी एडमिटेड। अब ये आई वॉन्टेड यहाँ पे नहीं चाहिए, बट वो नाम चाहिए यहाँ पे, वो परसेंटेज चाहिए यहाँ पर। तो दिस इज हाउ वी विल वर्क टूवर्ड्स इट। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. नाउ इसमें व्हाट इज द वाई? आई मीन एवरीवन नोज कि अगर आपके घर में एक नया मेहमान आ रहा है या बच्चा आ रहा है और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आप खुद प्रेग्नेंट हो, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती है until unless you don't want a baby. So that is a different part of the book. The book doesn't deal with it, so we will just leave it aside. But नहीं तो आपको पता है, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती इस केस में। तो यहाँ पे आपका why is already very strong, very strong. तो you don't need to write the why यहाँ पे। why has been taken care of आपके imagination में, आपकी इच्छा में, आपके मन में। तो you don't have to specify it here. So yes, it is a dream, complete dream in itself कि thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Okay, आगे चलते हैं। Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Again, there is no why in it because yes, घर जब हमें घर चाहिए होता है, it is the ultimate dream, that is the final destination you want to reach. But ये बहुत ही छोटा सा ड्रीम है, इसमें इन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। अगेन, हर एक की ड्रीम अबाउट देयर ड्रीम हाउस विल बी डिफरेंट। तो राइटर सबको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। अगर वो अपना ड्रीम हाउस के बारे में यहाँ पे लिखती तो शायद हम भी उसी तरीके से लिखते जो वो नहीं चाहती कि हम करें ना। आपको अगर फ्लैट चाहिए तो आप फ्लैट के लिए लिखो, आपको अगर विला चाहिए तो आप विला के लिए लिखो। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना ड्रीम कैसे फॉर्म करते हो। डिटेल्स पे ज़रूर ध्यान देना है कि यू वांट अ फ्लैट, यू वांट इन दिस अपार्टमेंट, you want it to be on which floor, then you want how many rooms in it, with attached bathrooms or not, with a servant quarter or not, with a modernly equipped kitchen, you want balconies in every room. Now it is on you how much detail you can put, how much you can imagine. तो इसके लिए your imaginations needs to be very strong, very strong. तो आप अगर ड्रीम की दुनिया में रहते हो या रहते आए हो तो you know how your imagination, how far your imagination can take you. और अगर आपको इतना इमेजिन करना नहीं आ रहा है तो you have internet access, you have books, magazines, आप पिक्चर्स देखो, आप समझो कि आपको कैसा घर चाहिए, किस तरीके का सोफा चाहिए, लिविंग रूम कितना बड़ा चाहिए, कितने स्क्वायर मीटर्स में शायद हम घर को नापते हैं ना। तो जो भी है आपका एरिया कितना चाहिए, तो एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल, एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल कि जब यूनिवर्स पढ़े तो उसे कहीं भी कोई डाउट नहीं हो। अच्छा इसे 3 बेडरूम चाहिए, अच्छा तीनों बेडरूम में से अटैच बाथरूम चाहिए, चलो दे देते हैं। अब आपने लिखा कि 2 बेडरूम चाहिए में अटैच बाथरूम चाहिए, तो हो सकता है कि वो मास्टर बेडरूम में ही नहीं दे अटैच बाथरूम, आपको हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नहीं दे।
हो सकता है कि वो गेस्ट वाले में और बच्चों के रूम में दे दे और मास्टर बेडरूम में नहीं दे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है और कैसे वो पूरा होगा। एंड यू कैन रेक्टिफाई योर ड्रीम्स। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख दिया वो आपके लिए परमानेंट हो गया। अब आपने कुछ आज लिखा, अब 4 दिन के बाद आपको समझ में आया कि नहीं मुझे ये नहीं ऐसे चाहिए, तो you can write another dream and you can just cancel that dream, just put a cross on it कि ठीक है ये अब it's no longer valid and मुझे ये वाली ड्रीम चाहिए। या फिर you can take a fresh paper, अगर आपके वो top 10 desires में है तो you can take a fresh paper and you can write all your dreams again, जिसमें भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो उसके साथ में, and you can tear the other paper and throw it। तो यूनिवर्स आपकी नई ड्रीम्स को फॉलो करेगा फिर। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैंने ये लिख दिया तो अब तो मुझे यही करना पड़ेगा। अब अगर आपने 85% मार्क्स लिख दिए कि मुझे चाहिए और सडनली आपको लग रहा है कि आपको 90% मार्क्स मिल सकते हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली चेंज योर ड्रीम। इट इज नॉट कि यू हैव टू स्टिक विद दैट ड्रीम ओनली। आगे चलते हैं। Thank you for the amazing phone call with my dad. That has improved our relationship. We will Thank keep on reading. Yes. thank you for the medical results that show that I'm all clear and healthy again. यस, Thank जस्ट अ सेकेंड। ये जो मेडिकल वाला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नेगेटिव वर्ड इन्होंने नहीं यूज किया है। जनरली हम क्या बोलते हैं, अरे यार आई होप मुझे कैंसर ना हो, अरे यार मैंने अपना मेमोग्राफी कराया है आई होप कि मुझे कैंसर ना आया हो। तो ये जो न वर्ड है ना, नो एंड नो के पर्यायवाची जितने भी होते हैं, सिनोनिम्स जितने भी होते हैं, ये यूनिवर्स नहीं समझता है। यूनिवर्स के बीच के डिक्शनरी में नो, डोंट, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। वो नो को हटा देता है। अरे यार मुझे कैंसर नहीं हो, तो इसमें यूनिवर्स ने क्या पढ़ा, अरे यार मुझे कैंसर हो, तो नहीं तो हट गया, तो क्या बचा यूनिवर्स के पास में, कैंसर बचा। तो वो आपको भर भर के देगा फिर। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि जब अभी भी आप मेडिकल रिजल्ट्स या मेडिकल टर्म्स में सोचते हो तो आपको इतनी पॉजिटिविटी रखनी है कि उस बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जो भी ब्रेकडाउन है, अगर पेन है तो नहीं हो नहीं लिखना है। आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, माई लिम्स आर वर्किंग फाइन, इट द वर्ड शुड गो लाइक दैट। तो आप कैसे फ्रेम करोगे ये आपके ऊपर है। अगर रिसेंटली आप फ्रेम करते हो वी आर स्टिल इन दिस जर्नी फॉर अनदर 17 days आई थिंक, 17 या 16 days। तो आपको अगर कोई ड्रीम फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो आप अपना वर्ड्स फ्रेम करके देन यू कैन आस्क कि मैंने ये ऐसे लिखा है, ये सही है या गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं मिनल। thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. हाँ, Thank एक और बात बोलना चाहूंगी मनी से रिलेटेड। जब भी आप मनी के लिए लिख रहे हो कोई भी ड्रीम, तो उसका वाइब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि मैं बहुत बार बोलती हूँ, अगर आपको 10,000 रुपये भी चाहिए ना, तो क्यों चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 10,000 चाहिए बोलने से आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसके साथ अगर एक चीज अटैच करते हो कि मुझे 10,000 एक साड़ी, फलानी साड़ी खरीदने के लिए चाहिए, तो वो फिर 10,000 आपको मिलेंगे। अगर उसमें क्यों नहीं है तो रुपए नहीं मिलेंगे। ये यूनिवर्स का एक सर्टिफाइड रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि मनी के साथ में यू शुड नो व्हाट यू वांट विद दैट मनी, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट मनी। अगर आप उस मनी से अपने बच्चे की पढ़ाई पे भी खर्चा करना चाहते हो तो यू हैव टू बी श्योर दैट दिस अमाउंट इज नीडेड फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन। तो आपको वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी ड्रीम्स के में, अगर ये क्लैरिटी है कि आपको पैसे क्यों चाहिए। आगे चलते हैं। you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you for doubling our sales figures this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Yes. Thank you for being my perfect partner. Now again this perfect partner, just writing perfect partner will not get you perfect partner. So you have to be very specified about your perfect partner. आपको उसकी फैमिली कैसे चाहिए, आपको उसके फिजिकल लुक्स कैसे चाहिए, आपको उसका नेचर कैसा चाहिए, वो कितना कमा रहा हो, सब कुछ आप जितनी डिटेल में लिख सकते हो आप लिखो इस चीज को, एंड देन यू विल गेट द परफेक्ट पार्टनर। आपका परफेक्ट पार्टनर आपके हिसाब से कुछ और होगा और यूनिवर्स के हिसाब से आपका परफेक्ट पार्टनर कुछ और होगा।
So just remember कि you have to specify it everything in detail to get what you want. Okay. Thank you for how easy and effortless our move was. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं जिससे आप बेसिकली ये समझ लो कि कैसे लिखना है. तो यू हैव टू स्टार्ट योर ड्रीम विथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, and then you have to continue your dream writing in present tense as if you have it already. आप ऑलरेडी घर में रह रहे हो, आपके ऑलरेडी 90% मार्क्स आ चुके हैं, आप ऑलरेडी प्रमोशन आपका हो चुका है. Whatever be the case, you have to write it as if you have received it already and you are enjoying the benefits from them. You are enjoying them. तो वैसे आपको लिखना है. Now, Write thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. yes, तो अब ये हमें बता रहा है कि हमें थैंक यू 3 times क्यों लिखना है. Why we cannot write just once thank you and then we can write कि how easy and effortless our move was. तो ये अब हमें बताएगी बुक कि हम 3 times थैंक यू क्यों लिख रहे हैं. बिकॉज इट इंक्रीजेज द फोकस ऑफ योर ग्रेटिट्यूड. क्योंकि आप एक बार जब थैंक यू बोलते हो तो आप शायद एयर में उछाल देते हो, लेकिन जब आप 3 बार बोले तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो आ गया ना उस वर्ड्स पे. आपने एक बार बोला थैंक यू, आपने 2 बार बोला थैंक यू, आपने जब तीसरी बार बोला थैंक यू तो योर कॉन्सेंट्रेशन इज देयर. यू हैव गॉट योर कॉन्सेंट्रेशन नाउ ऑन दोज वर्ड्स विच आर गोइंग टू राइट आफ्टर दैट. तो यस, यू हैव टू से राइट 3 times थैंक यू. आगे चलते हैं. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is a mathematical number for all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. This is same. Just a second. तो अब जब भी हम 3 चीज ले रहे थे हर जगह पे, क्यों ले रहे थे इसका इसने यहाँ पे खुलासा किया है कि 3 times इज ऑल्सो अ मैजिक फॉर्मूला. जब आपके जिंदगी में जब निर्माण होता है या सृजन होता है या फिर क्रिएशन होता है तो उसमें हमेशा 3 जन होते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक बच्चा. तो इट इज अ क्लियर कट रूल. कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी अगर आप क्रिएट कर रहे हो कुछ भी, चाहे वो एनिमल किंगडम में हो, चाहे वो ह्यूमन वर्ल्ड में हो, चाहे वो प्लांट वर्ल्ड में हो. प्लांट्स में, फ्लावर्स में यू कैन स्टडी if you have children or if you remember your bio lessons. There is a stamen and there is a जो जैस्मिन फ्लावर रहता है उसमें you have both the female and male gamete and जो भी रहते हैं वो मुझे अब वर्ड्स याद नहीं है एग्जैक्टली, बट इट हैज पार्ट्स. फीमेल एंड मेल दोनों पार्ट्स होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर एंड वहीं से उसके स्टार्ट होते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज द जैस्मिन नहीं, आई मीन वो क्या बोलते हैं उसे, रेड कलर का फ्लावर. Hibiscus? हाँ, yes Milan, thank you so much. Hibiscus. So you can, if you want to, you can Google it also. Hibiscus has both the female and male parts in it, and वो वहाँ पे ही they, what is the word Milan? They what they do? Pollination होता है ना उनका. Yes. So you can see. तो हर चीज में you need a male, you need a female, and then the baby formation happens. तो ये यूनिवर्स का रूल है. तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो. यू आर क्रिएटिंग योर ड्रीम्स एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट. तो क्रिएशन में यू आर यूजिंग दिस थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर 3 times. तो इट्स सिंपल फॉर्मूला जो आपको दिया जा रहा है कि थैंक यू आपको 3 बार क्यों बोलना है. वैसे ही जब आप अपनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हो या आपकी कोई आपका मनी में आप क्रिएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इसके लिए वो आपको 3 फोटोग्राफ्स लेने बोलता है या 3 डिजायर्स. मैंने आपको क्यों बोला कि टॉप 10 में से आप 3 डिजायर्स पे ज्यादा सोचिएगा. बिकॉज अगेन वो जो 3 नंबर है वो आपके लिए क्रिएशन आप कर रहे हो उसका, एंड 3 के ही हिसाब से पूरा यूनिवर्स चल रहा है इस चीज में. Again, if you see 3 का what is the significance of 3 in the universe, then you can again go on Google and you can type these words और आपको बहुत सारे examples मिलेंगे कि क्यों 3 is important in our life. In our life मतलब in our universe. Then one example I can give you कि body, mind and soul
ये भी 3 होते हैं, ट्रिनिटी है इनकी भी. एंड देन ब्रह्मा विष्णु महेश. अपने अगर माइथोलॉजी में जाए तो यू हैव ब्रह्मा विष्णु महेश, दे आर ऑल्सो 3. एंड उनके पास में पूरा यूनिवर्स को, जैसा कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बनाते हैं, शिव जी हमें, विष्णु जी he gives, he takes care of the growth of everything, and then the destroyer comes in, and Shiv ji is considered to be the supreme destroyer of everything. उनको मतलब बस खत्म करते हैं वो. तो ये 3 भी हमारे पास में है. अगर हम अपने माइथोलॉजी में देखें तो वी नो कि ये तीन जो हैं, ये सृष्टि के रचयिता, उनके पालन करता और उनके विनाश करता, तीनों यहीं पे है, हमारे पास ही है. तो 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए हम हर चीज 3 में कर रहे हैं इस बुक में. आगे बढ़ते हैं. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret formula. Yes, magic formula. So now the first step is given to you. You have to write your desires very specifically. Now we are moving to other steps. Yes, Minal. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. हाँ, तो ये बुक हमें बोल रही है कि अब जब हम जो 10 डिजायर चूज कर लिए हैं, उनके साथ हमें क्या करना है. व्हाट इज द प्रैक्टिस about what we will be doing with those 10 desires. Yes. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much details as you can in your mind. Yes, just a moment. तो यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि आपको अब क्या करना है. जब आप एक डिजायर के पास गए, आपने 10 डिजायर लिख ली अपनी एक पेपर पे, वो पेपर आपके पास है. नाउ यू पिक द फर्स्ट पेपर एंड फर्स्ट डिजायर, एंड देन यू थिंक कि आपको वो डिजायर पूरी होने पे आपकी फीलिंग्स क्या हुई. देन यू मूव टू द सेकेंड पॉइंट. आपने ये डिज़ायर पूरी होने पे सबसे पहले किसे बताया, एंड उन्हें आपने कैसे बताया. क्या आपने उन्हें फ़ोन कॉल किया, जिनको भी आपने पिक किया, जैसे कि आपका एडमिशन एक फलाने कॉलेज में हो गया, तो आपने कैसा फील किया. उसके बाद में आपकी फीलिंग्स थी हैप्पीनेस की, इलेशन की, जो भी फीलिंग्स थी. उसके बाद में आपने सबसे पहले ये खबर किसको दी. क्या आपने अपने पापा को किया, खबर दी. पापा को अगर खबर दी तो आपने कैसे खबर दी, पर्सनली जाके खबर दी या फिर उन्हें फ़ोन कॉल करके खबर दी. उसके बाद में हाउ, व्हाट डिड यू डू, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिज़ायर. तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में जाना है कि यू थ्रू अ पार्टी, सपोज करिए you threw a party to your friends that yes, you have got your admission in the NLSA college in Bangalore for law. So how did you celebrate that moment? What did you do about it? Where did you go? What you will be doing? All this you have to visualize in your mind while you read your first desire. I think we won't have time to do the visualization practice. अगर सबके पास टाइम रहा तो लास्ट में we will do. Let's just finish the, first we should finish the chapter, okay? Now, आगे. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. See, so what we should do
इन दिस केस कि आप अपना फ़ोन ले लो, उसको उसमें एयरप्लेन मोड में डाल दो एंड जितने भी डिज़ायर्स आपको उस समय करने हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि 10 डिज़ायर आपको एक साथ बैठ के करना है, आप ब्रेक पे भी कर सकते हो। तो अगर आपने सपोज आपने किया फर्स्ट डिज़ायर को, तो आप 1 मिनट का टाइमर लगा लो अपने फ़ोन पे, देन यू स्टार्ट, यू रीड योर डिज़ायर कि थैंक यू फॉर thank you for the high marks in my exam results which got me to the exact college I wanted. अब आप उसके बारे में आंखें बंद कर लिया आपने, 1 मिनट का टाइमर लगा हुआ है आपका, then you start visualizing कि आपको वो मिल गया है, you have got it. Then you go to the second step कि you are happy, मतलब कैसे फीलिंग्स आ रही है आपको वो मिलने के बाद में, you first think about it, visualize about it. Then you go to the second step एंड आपने उसे किसके साथ शेयर की है और कैसे शेयर की है वो आप सोचो, अपने मन में आपके चल रहा है ये सब। एंड देन यू गो टू द थर्ड स्टेप एंड देन यू विजुलाइज कि इसी के लिए आपने कैसे उसे सेलिब्रेट किया, किसको पार्टी में बुलाया, क्या क्या खाया, मतलब डीप डिटेल में यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स कैसे क्या क्या हो रहा है आपके आसपास में। एंड देन इसीलिए वो 1 मिनट का डिजायर पे आपका टाइमर लगा हुआ है, तो जब ये हो गया 1 मिनट वो टाइमर बजेगा तो यू कैन कम आउट ऑफ इट। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो इट इज योर विश। 1 मिनट तो आपका पूरा हो गया है, अब आप अगर स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू अबाउट थिंकिंग अबाउट दैट डिजायर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। और कोई डिजायर आपकी अगर बड़ी है, आपको पता है कि ये 1 मिनट में आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, तो यू कैन सेट योर टाइमर एट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, जैसे आप चाहते हो। पावर बुक बोलती है कि स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन के लिए एक ड्रीम को आपको 7 मिनट देना चाहिए। ये मैजिक बुक नहीं बोल रही है, तो आपकी इच्छा है, अगर आपको अपने टॉप 3 ड्रीम्स को 7 मिनट का विजुअलाइजेशन देना है तो दैट इज योर विश। आई एम लीविंग इट ऑन यू बिकॉज मैं आई हैव डन पावर ऑल्सो एंड वी हैव डिसाइडेड कि वी विल नॉट कीप थिंग्स टू आवरसेल्व्स, जहाँ पे जो जरूरत होगा वी आर गिविंग इट टू यू पीपल। तो आप उसे यूज कर सकते हो, 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं आप। इट इज ऑन यू हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट, लेकिन 1 मिनट इज मिनिमम। प्लीज रिमेंबर 1 मिनट इज मिनिमम। 1 मिनट से कम में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फीलिंग्स नहीं आएगी, इसलिए 1 मिनट जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 60 मिनट तक जा सकते हैं, इट इज योर विश। ठीक है, अब ये बुक हमें बताएगी कि हम और क्या कर सकते हैं अपने ड्रीम को करीब लाने के लिए। ये बुक अब एक और चीज बताती है, मैं आपको 5 तरीके बता रही हूँ फॉर मैनिफेस्टेशन। देयर आर 5 स्टेप्स टू मैनिफेस्टेशन। वन इज टू राइट डाउन योर ड्रीम्स, बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन बी। ये है आपका फर्स्ट स्टेप जो ये बुक बता चुकी है। सेकेंड स्टेप इज विजुअलाइजेशन, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये बुक आपको ये भी बता चुकी है कि आपको कैसे विजुअलाइजेशन करना है। थर्ड स्टेप, इट विल बी टेलिंग यू अबाउट द विजन बोर्ड विच वी विल रीड नाउ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। नाउ देयर आर 2 more steps which this book doesn't talk about, but I am telling you these 2 steps. Fourth is key to hear your dreams. Now, how will you hear your dreams? What you will do is you will record your own voice about your dream and you will store it. अब जब आपको कभी गाना सुनने का इच्छा है या कुछ और आप नहीं कर रहे हो, यू आर फ्री, तो स्विच ऑन दैट ऑडियो एंड लिसन टू इट, कीप लिसनिंग टू इट व्हेनेवर यू हैव टाइम, कीप लिसनिंग टू इट। मतलब आपकी ड्रीम है, आपने उस ड्रीम को अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया है और जब आपके वो फोन पे है सेव किया हुआ, जब आपको इच्छा हो रही है आप उस ड्रीम को सुन रहे हो। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ रियलाइजेशन और मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम। फिफ्थ स्टेप इज टू टॉक अबाउट इट। अब ये आपकी ड्रीम है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, स्प्रेड इट। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स कि हाँ मुझे 90% चाहिए। मतलब आप जितना बोल रहे हो यूनिवर्स उतना आपकी आवाज को सुन रहा है, आपका दिमाग भी सुन रहा है, आप विजुअलाइजेशन में आपको और इजी होगा। तो यू नीड टू टॉक अबाउट इट, यू नीड टू स्प्रेड द वर्ड। अगर आपके फैमिली मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, बहुत अच्छा है। जैसे कि आपका घर, आपको अपना घर चाहिए, तो यू कैन टॉक अबाउट इट टू योर son, daughter, or to your husband, and then you can put them also into this mood कि वो भी उस बारे में सोचे कि आपको घर चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, कैसा चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप उन्हें भी वो विजुअलाइजेशन दे रहे हो और उनके इनपुट्स ले रहे हो। तो घर में आपको तो घर में अकेले नहीं रहना है ना,
you want your family members to stay. अब अगर आपके घर में आपको 3 रूम चाहिए और आपके बेटे को 4 रूम चाहिए, तो क्लैश तो वहीं पे शुरू हो गया ना। तो आपको सोचना है कि आपको 3 रूम का घर चाहिए, तो आपके बेटे को कैसा घर चाहिए। अगर उसे भी 3 रूम का चाहिए तो फाइन, क्लियर हो गया उसके साथ में, आपने बात की तो क्लियर हुआ ना। अगर आप बात नहीं करोगे और अपने मन ही मन करते रहोगे तो क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। तो टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट टू द पीपल हु आर कंसर्न और हु आर कनेक्टेड विद दिस ड्रीम. Talk to your friends, talk to your relatives who are into this mode, who will not put you down, who will not give you negative feelings. Basically talk to the people who are not toxic in nature. अगर वो उनके अंदर टॉक्सिटी है, अगर वो आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते हैं, अगर उनमें जलन या ईर्ष्या का भाव है, यू नो इट वेरी वेल कि ऐसे कौन से लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुश नहीं देख सकते. डोंट शेयर योर ड्रीम्स विद देम, डोंट गो एंड टेल अबाउट इट टू देम. इट्स अ बेसिक रूल, आप करोगे भी नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है. वी विल गो एंड टॉक टू पीपल जो हमारे लाइक माइंडेड होते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं. आज अगर मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, so the first thing I share this with is my friends group. They encourage me 10 folds, 20 folds, 100 folds. मतलब हर वक्त encouragement ही encouragement है. मैं अपने husband को बोलती हूँ, yes, he is encouraging me. मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, yes, he is with me. तो you will know who you want to share it with. You will know. You have to decide कि आपका वो safe zone या आपका वो comfort zone किसके साथ है. But talk about it. So I have told you about 4 steps to manifestation. The fifth step is what this book is telling us. Meral, please continue if you want. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine your magic board is truly magical, and that's whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yes. So this is the fun part of this chapter. I love this part. I have made my magic board also. We can call it visualization board also, whatever you feel like calling it. And इसमें क्या करना है आपको कि different pictures आपके हिसाब से आपको collect करने हैं जो जो आपका specify करता है. जैसे मैंने अपना traveling का बनाया है magic board. I have just done one dream. You can do your 10 dreams in one board. You can do different boards for every dream. That is up to you. You can make a mind map also. If you people are not familiar with mind map, ask your children or Google it. Mind map is something जिसमें आपका एक बीच में आपका माइंड है और उसके साथ उससे आपके आसपास में वो तार निकल रहे हैं एंड देन यू आर ड्राइंग और यू आर राइटिंग डाउन योर थिंग्स उसके सराउंड होकर. मतलब ऑलवेज रिमेम्बर कि सेंटर में आप तो हुई और उसके बाद आप एक कोलाज जैसा बना रहे हो. बट कोलाज इज वेरी क्लियर, इट इज अ कोलाज, बट उसमें ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए पिक्चर्स के. इट शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए. एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू डू इट विथ योर चिल्ड्रन बिकॉज दे लव इट. जब मैंने बनाया था आई टुक राघव का हेल्प एंड आई डिड इट एंड ही वाज बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ माय ड्रीम and obviously he will be traveling with me to the destination which I have chosen. So he was excited कि मम्मा ये लगा दो, मम्मा आपने ये भी कर सकते हैं. And I took help from the internet. I took pictures out from there. अगर आपको पॉसिबल नहीं है, इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट आर्ट एंड क्राफ्ट, तो अगर आप टेक्निकली करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट ऑल्सो. अभी तो काफ़ी लोग हैं जो आपके लिए बना के देते हैं विजन बोर्ड, ऑनलाइन बनाते हैं एंड दे गिव यू अ पिक्चर विच यू कैन कीप ऑन योर फोन एंड यू कैन सी दैट अगेन एंड अगेन. अगर आपको कहीं लगाना नहीं है घर में, किसी दीवार पे आप लगा नहीं सकते हो due to some reasons, whatever reasons they may be, so you can keep your mind vision board on your phone also. So just remember that you have to write thank you, thank you, thank you in big bold letters on the top of your board.
I will send you my example, what I have done, and I will try to send other people का work also, which my friends or earlier हमारे जो group में किसी ने किया है. So I will send you that also, and you can have your cue from there and you can do it. But I will suggest that please do it. Please do it. अपना अगर 10 ड्रीम का नहीं तो अपने टॉप 3 ड्रीम्स के लिए तो प्लीज डू इट सो दैट you keep seeing it, you keep visualizing it, and you get nearer and nearer to your dream, because it is one of the steps of manifestation which we ignore, which we literally ignore कि कौन करेगा यार छोड़ दो. तो नहीं, मैं आई विल सजेस्ट दैट यू प्लीज डू इट. एंड कैसे कैसे करना है ये आइडियाज आपको अपने आप आएंगे. जैसे कि मैंने जब ट्रैवलिंग का बनाया तो मुझे अभी आई वांट टू विजिट द पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, एंड आई वांट टू स्टे एट देयर ताज प्रॉपर्टी. उसके साथ में ही आई वांट रायपुर में मेरी एक ननंद रहती है. आई वांट टू विजिट हर हाउस आल्सो, एंड देन वी हैव अ वेरी old temple at Champaran which is connected to our beliefs. So I want to go there also, and it is all connected. So what I have done is I have taken my Nanand ki family ka picture with her house. I have pasted it there. I have taken a flight ka picture and I have pasted it there. I have completed it by pasting the Champaran ka temple, and then I am visiting the Taj ka property, uske pictures. Uske baad mein I am seeing tigers. I am doing the jeep safari. Everything which I could imagine, I have pasted it on it. Finding pictures different जगह पे. I will not get a picture, complete picture anywhere. So what I did was, जैसे अब मुझे पता है कि मुझे जीप चाहिए, क्योंकि सफारीज are generally done in a jeep. So I have done that. मुझे पता है कि मुझे फॉरेस्ट एरिया विजिट करना है, तो आई हैव पेस्टेड वैसे. ऐसे कर करके फ्लाइट का पिक्चर, हमारी पिक्चर्स, ऐसे कर करके मैंने वो विजन बोर्ड तैयार किया है. तो यू कैन सी व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पेस्ट योर पिक्चर्स. एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, ये ड्रीम्स जो होते हैं ना, उसमें ट्रैवलिंग का एक ड्रीम जरूर रखना, हमेशा हमेशा, बिकॉज ट्रैवलिंग मेक्स यू हैप्पी. when you visit some other place, when you are out of your house, when you are out of your मतलब it gives you immense satisfaction जब आप किसी और जगह पे, किसी और दुनिया को, किसी और संस्कृति को जान रहे हो. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑल्सो, तो मैं संस्कृति बोल रही हूँ, बट ठीक है, अगर आप व्यूज एंड सीनरीज के हिसाब से भी चलो, तो ट्रैवलिंग का एक ड्रीम अपने 10 ड्रीम में हमेशा रखना. जब वो एक ड्रीम कंप्लीट हो जाती है तो उसमें दूसरा ट्रैवलिंग का ऐड करते जाना. तो जितना हैप्पीनेस, जितना अबव द लाइन आपको ट्रैवलिंग रखता है, उतना शायद ही कोई एक्टिविटी है जो आपको रख सके. एंड दैट इज द टाइम यू आर स्पेंडिंग विथ योर फैमिली, तो योर फैमिली गेट्स इंक्लूडेड इन इट अपने आप. So I would suggest that please everyone keep a traveling dream in your traveling से related एक dream in your dreams. The destination can be anything. Now, do you all want to do the visualization practice? कि कैसे करना है? It's already 6:15. It is your decision. Or we can do it tomorrow if you want. First thing, कि how you have to visualize this. I would prefer tomorrow. अभी क्योंकि मैजिक प्रैक्टिस भी बचा है ना. Yes, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लंबा था. दैट इज व्हाई आई सेड कि वी विल स्टार्ट एट 5:05, बट आई वुड रियली वांट सबके साथ करना ये विजुअलाइजेशन वाला जो है, यू रिसीव्ड योर डिजायर एंड थिंग्स वाला. So we will do it tomorrow in the morning, first thing before starting our chapter. And तब तक आप लोगों को पता भी रहेगा कि आप लोगों को कौन सी ड्रीम लेनी है अपनी. The whatever dream you want to pick up for this practice, you can be ready with that. Okay, so we will move ahead and magic practice. Yes. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yes, तो ये तो हम कर ही रहे हैं, तो everyone knows. Second. 2. Sit down at a computer or with pen and journal and write your top 10 desires. Write thank you 3 times before each, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire.
See, this is clear. अगर नहीं clear है तो after the session ends, we will talk more about it. 3. Third, Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first thing that you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. yes. So again, this we Finally, have already talked about. Number 4. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you can feel them as much as you can. तो ये फोर्थ वाला इज व्हाट एग्जैक्टली इज कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट ली, आपने पहला डिजायर पढ़ा अपना, आपने उसका पूरा विजुअलाइजेशन किया, एंड देन व्हेन यू ओपन योर आईज अगेन आफ्टर विजुअलाइजेशन, आफ्टर द 1 minute is over, when you open your eyes, you again read the sentence, and then from your heart you say thank you, as if that you have already got them right. So then from your heart the thank you comes. After the visualization 110% it comes from the heart only, so don't worry कि heart से नहीं आएगा, you will feel it. And then last में ये मतलब इस एक चीज में आपको 3-4 चीजें करनी है, तो उसमें फिर आपको फाइनली थैंक यू बोलना है उस डिजायर के लिए, एंड देन यू हैव टू go to the next desire. This is what the book is telling us. And number 5th, If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. yes. तो Just ये विजन बोर्ड पे स्ट्रेस दे रहा है. I would also stress on spreading the word from your mouth, speaking about it, and then listening to it. Get a audio made and then listen to it. So these are the 5 steps to manifestation, and please do these to see the results. Okay. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So last practice is obviously everyone of us are now into the practice of taking our magic rock in one hand and then thinking about what all good things happened throughout the day and then saying thank you for the best thing. Okay. So let's do our gratitude practice. I mean, sorry, not practice. We should thank whoever we want to, and then we will move forward. Yes, now, if someone wants to leave because it's already 6:22, you're most welcome. And अगर किसी के पास में कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है आज के बारे में या पहले चैप्टर्स के बारे में, you are most welcome to ask. Good morning, Minal. Good morning, Shweta. Hi, I'm Shweta. I just wanted to ask something regarding today's chapter. Yes. कि जैसे do we have to write, like suppose if I have 10 dreams and I want to write now, like I have not written it before, जैसे तो अब जैसे अगर अभी हम लिखते तो सारे 10 dreams के पूरे complete elaborated लिखने हैं, या I can write Yes. 10 dreams by thank you and I can elaborate 3 dreams. See, it is on you. बट अगर आपको वो 10, आपने 40 ड्रीम्स लिखी होगी, उसमें से अगर आपको 10 बोला जा रहा है लेने एंड स्पेसिफाई बोल रहा है करने बार बार कि आप 10 ड्रीम्स को जो भी ले रहे हो उन्हें स्पेसिफाई करो, डिटेल्स में जाओ, तो यू शुड गो फॉर द 10 ड्रीम्स पूरा स्पेसिफाई करके, और उनमें से 3 के बारे में आपको सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है. ये है एक्चुअल में 3 ड्रीम्स का जो पार्ट है ना, जो मैंने बोला है, उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो. इट कम्स इन पावर.
इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मैजिक बुक. मैजिक बुक बोलती है आपको कि वो 10 ड्रीम के बारे में आप सोचो, आप लिखो, आप विजुलाइज करो, आप बातें करो, सब चीज वो 10 ड्रीम के बारे में करो. इनफैक्ट वो 5 स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन भी ये बुक नहीं बोल रही है. ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब आपने 3 सीख ही ली है तो 2 तो बहुत सिंपल है. जस्ट हैव टू टॉक टू पीपल एंड यू जस्ट हैव टू बी लाइक what was the fourth one? Hear. You have to hear it. तो ये Listen दोनों and तो read. बहुत ये दोनों तो बहुत सिंपल चीज है. तो जो ये कंप्लीट करता है इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को. इन सब के अलावा आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अपना कर्म करते रहना है. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. अब आपने बोल दिया कि मुझे तो पतला होना है और एलैबोरेटली आप उसमें क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे. एंड देन यू गो एंड स्लीप ऑफ एंड देन you eat like there is no tomorrow. So your dream will not realize, you will not get your dream. You have to do your karma, make all your wishes come true. तो आप अभी वो 3 पे ध्यान मत दो. बेसिक क्वेश्चन जो आपका है, आप 3 पे ध्यान मत दो इतना. आप 10 ड्रीम को डिटेल में लिखो क्योंकि यूनिवर्स को डिटेल समझ में आता है, उसे कॉम्पैक्ट चीज समझ में नहीं आती है. और देन इट डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम ऑल्सो. अगर वो कॉम्पैक्ट ही है तो फिर ठीक है, इट इज ओके. लेकिन इफ इट हैज something which needs to be discussed in detail, then you have to go for the detail part. You have to write in detail. Otherwise, the universe will not give you. If you want to wait, अगर आपको वो 3 ड्रीम पे ही कंसंट्रेशन करना है तो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी. तब आप सिर्फ 3 पे कंसंट्रेट करिए, 3 के लिए सब कुछ करिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 10 ड्रीम में से कुछ आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है जो आपको रियलाइज करना है, तो आप वो कर सकते हो. और एक और बात है, जो ये 3 ड्रीम्स होती है ना जिन्हें हमें बार बार सोचना है, दे आर जनरली शॉर्ट टर्म ड्रीम्स. दे आर लाइक कि आपको अभी कुछ दिनों में कुछ चाहिए तो आप उनको वो 3 ड्रीम्स जो होते हैं वो जनरली हम उसमें पिक करते हैं शॉर्ट टर्म वाले में, ताकि वो हमारी फटाफट पूरी होती रहे और हमें दिखते रहे कि वो हो रहे हैं पूरे. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, श्वेता? Yes, yes, I did. Thank you. वेलकम. एनीवन एल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ड्रीम? आई मीन एवरीथिंग इज क्लियर? अगर हम ड्रीम के बारे में लिखते हैं तो क्यों चाहिए ये भी लिखना है? नहीं, ये लिखना नहीं है आपको. ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको वो क्यों चाहिए. जैसे इफ यू टेल मी वन ऑफ योर ड्रीम्स देन आई कैन हेल्प यू मे बी प्रोबेबली. लेकिन आपके आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको ये ड्रीम क्यों चाहिए. अब मुझे मेरा ड्रीम है, आई वांट टू बी थैंक यू फॉर माय आइडल वेट ऑफ 60 kgs. अब ये मुझे 60 kgs क्यों चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए. अब उसमें मैं लिख के क्या करूंगी कि बिकॉज आई वांट टू बी लुक ब्यूटीफुल, आई वांट टू वेयर क्लोथ्स एंड आई वांट टू बी हैप्पी. दीज आर ऑल आर सेकेंडरी थिंग्स. ये जो मेरी जो मेन मंजिल है वो है कि मुझे पतला होना है. क्यों होना है? फॉर हेल्दी रीजंस, टू बी फिट. देयर आर सो मेनी रीजंस. तो उसमें से जो मेरा सबसे पावरफुल रीजन है वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों होना है, मुझे 60 kgs क्यों होना है. इट शुड बी देयर एंड देन आई शुड वर्क टूवर्ड्स इट. अब मैंने तो लिख दिया कि मुझे 60 kgs होना है और अब मैं रोज खा रही हूँ आराम से, पकौड़े खा रही हूँ, चीज सैंडविचेस खा रही हूँ, थम्स अप पी रही हूँ, कोल्ड कॉफी पी रही हूँ. तो एंड एक्सरसाइजेस कर ही नहीं रही हूँ आराम से, मतलब लेट आउट लाइफ जी रही हूँ. तो ये आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल कि मेरी ड्रीम पूरी होगी कभी लाइफ में? ना तो मैं उसको उसके लिए वर्क कर रही हूँ, ना मैंने उसका वो सशक्त रखा है. क्योंकि जब तक आपका क्यों सशक्त नहीं होगा ना, कि कोई एक सॉलिड रीजन नहीं होगा आपके पास में कि आपको क्यों पतला होना है, तब तक आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे, आप अपने कर्म नहीं करोगे, आप उसकी तरफ बढ़ोगे नहीं. तो ये क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट होता है आपके ड्रीम्स के लिए, ताकि आप उसकी तरफ वर्क करो, आप उसके लिए सोचो, आप उसके लिए करो. नहीं तो वो आप 40 ड्रीम लिखे हो, उसमें से एक ड्रीम आपने पतला होना लिख दिया, आप वो साइड में पड़ी है कहीं पे. आपके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप डिसाइड करोगे. और वो आप कैसे डिसाइड करोगे? वो जितना जितना पावरफुल वो क्यों होगा ना, उसके कारण वो आपके टॉप 10 में आएगा, नहीं तो शायद वो 40 में रह जाएगा. तो इसके लिए आपको क्यों जरूरी है, आपको लिखना जरूरी नहीं है वो क्यों को कहीं पे भी, बट यू शुड नो. जैसे आप देवांशी ने कल बोला था कि she wants to have get 90% marks in the boards.
लेकिन अब उसे क्यों 90% मार्क्स चाहिए, वो उसके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए कि वो उस 90% मार्क्स को लाके क्या करेगी। अब उसे क्राइस्ट कॉलेज में जाना है, क्राइस्ट कॉलेज का अगर कट ऑफ 90% है ही नहीं और उसका अगर सिर्फ क्यों है क्राइस्ट कॉलेज में जाना, तो अ बेटर ड्रीम फॉर हर विल बी दैट आफ्टर 10th शी स्टडिंग इन, आई एम राइट नाउ स्टडिंग इन क्राइस्ट कॉलेज इन लॉ। तो अब वो क्राइस्ट कॉलेज में लॉ पढ़ रही है, उसके लिए उसे 90% मार्क्स नहीं चाहिए, उसके लिए उसे सिर्फ उसमें एडमिशन चाहिए जो उसकी ड्रीम उसको करा रही है। अब क्राइस्ट कॉलेज में लॉ पढ़ के उसे क्या करना है, देन अगेन क्यों आता है इसमें भी। तो शी वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, देन हर ड्रीम हैज टू बी कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर, प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ बेंगलोर और वेयर एवर, और आई हैव जॉइंड दिस कंपनी। तो उसकी ड्रीम फिर चेंज हो जाती है, उसकी ड्रीम में नाउ इट बिकम्स कि आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ इन खितान एंड कंपनी, सपोज करिए इन खितान एंड कंपनी, I am practicing law in Khaitan and Company at a very high post, और I have become a partner in Khaitan and Company। तो ये ड्रीम के लिए वो अपने आप यूनिवर्स उसको बहुत सारे व्हीकल्स देगा। वो जब आप व्हीकल्स चूज कर, ये आपका ड्रीम है, अल्टीमेट ड्रीम है आपका टू बिकम अ फेमस लॉयर, उसमें क्यों आपको नहीं चाहिए। सक्सेसफुल होना अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है, सक्सेसफुल होना इन लाइफ ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो वो आपको अल्टीमेट मंजिल है आपकी यहाँ पर। अब ये जो छोटे छोटे जो ड्रीम्स है जो वो देख रही है कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, मुझे क्राइस्ट में पढ़ना है, मुझे प्रैक्टिस फलाने जगह करनी है ताकि मैं उससे मूव ऑन करके फिर सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर सकूं, ये सब छोटे छोटे व्हीकल्स है जो आपके पास आते रहेंगे, पूरे होते रहेंगे और आप उन्हें छोड़ते रहोगे। आप आज ट्रेन में बैठे, आप एक डेस्टिनेशन पे उतर गए, वहां से आपने गाड़ी की, आप दूसरी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट गए, वहां से आपने फ्लाइट पकड़ी एंड फाइनली यू रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन। तो दीज आर ऑल व्हीकल्स। जब आप व्हीकल्स चूज करते हो तब आपको क्यों चाहिए, और वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो क्यों लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपके अंदर में वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए क्यों। ओके, एनीवन एल्स? थैंक यू। वेलकम। किसी और को कुछ पूछना है क्या अपने ड्रीम के बारे में? सबका ड्रीम्स बहुत क्लियर है, आई होप सो। चले फिर, वी विल टेक आवर लीव फ्रॉम ईच अदर। ओके, एनीवन? देवांशी, आर योर ड्रीम्स क्लियर नाउ अबाउट योर 90% marks? No, I have to think about it Yes, properly. yes. So see, what you have to go for is the end result. जितना बड़ा आप ड्रीम देख रहे हो, मतलब ड्रीम्स ऐसी होनी चाहिए कि लोग आप पे हंसना शुरू कर दें। ये अजीम प्रेम जी का कोट भी है कि जब तक आपकी ड्रीम्स पे लोग हंसे नहीं तब तक वो ड्रीम ड्रीम नहीं है। तो ड्रीम्स ऐसे देखो कि सामने वाला जब सुने तो उसे हंसी आ जाए कि ये क्या सोच रही है, ये पूरा होगा भी क्या इसका। तो तब वो ड्रीम्स होते हैं, तब वो ड्रीम्स होते हैं। जब ऐसे ड्रीम्स देखो आप लोग, सब कोई ऐसा देखो, बट उसके साथ में छोटे मोटे भी देख लो ताकि वो फटाफट पूरे हो। तो ये आप पे है कि आप क्या देख रहे हो और कैसे, किस शिद्दत के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। शिद्दत होना बहुत जरूरी है। राशि, आई होप यू आर सीइंग द वीडियोस पहले वाले। हाँ ठीक, I've already seen day 3 and day 4. I'm seeing day 5. यस, तो आपकी ड्रीम लिस्ट बन गई है क्या? आपको डे 0 पे, तो मेरे पास वीडियो नहीं था डे 0 का, बट डे 0 में हमने यही सीखा था कि जो भी हमारी ड्रीम्स है वो हमें कैसे लिखनी है और क्यों लिखनी है। तो इन केस यू हैव नॉट डन दैट ऑल्सो, ये जो आज का चैप्टर है आप इसके हिसाब से अपने 10 ड्रीम्स लिख लो अभी एंड उन पे वर्क करो, और जब उसमें से एक ड्रीम पूरी हो जाती है यू कैन ऐड अनदर ड्रीम टू इट। ओके, Okay. एंड टिल देन वर्क ऑन योर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। आपको वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ड्रीम्स पूरी होगी। ठीक है? हाँ ठीक है। एनीवन एल्स, एनीथिंग कि मैं सबके नाम ले लेके पूछूं? सारे ड्रीम के मतलब पिक्चर्स तो नहीं मिल सकते। मिलते हैं ना, बताओ आपको कौन सी ड्रीम चाहिए पूरी करनी है, आपको किस ड्रीम के लिए आप बोल रहे हो? अगर जैसे मेरी बेटी सीए कर ले तो तो जैसे आपको सीए का सर्टिफिकेट आता है, हाँ तो आपको वो सर्टिफिकेट कहीं से प्रोक्योर करना है, और उसमें जहाँ पे आपकी बेटी का नाम है, जहाँ पे नाम रहता है उसमें आपको अपनी डॉटर का नाम डालना है। ठीक है?
और फिर उसको प्रिंट आउट करना है और उसको प्रिंट आउट करके आपको अपने विजन बोर्ड में लगा लेना है, तो वो आप फिर उसे देख सकते हो। एंड उसके बाद में आप एक ऑफिस का एरिया जो सीए का जैसे फर्म होता है जिसे उससे ज्वाइन करना है, अगर कोई फर्म है उसके दिमाग में जो वो ज्वाइन करना चाहती है, तो आप उसका पिक्चर, उसके फर्म का पिक्चर एक क्लिक करके या कहीं से लेकर उसे भी लगा सकते हो अपने विजन बोर्ड पे। थर्ड स्टेप इज कि अगर आपको जैसे सीए का तो कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसे फॉर लॉ, लॉ हैज अ यूनिफॉर्म, इट इज अ ब्लैक कोट, तो आप किसी भी लॉयर का फोटो लेकर उस पे फेस पे अपने डॉटर का लगा सकते हो, इट इज फॉर लॉ। बट सीए के केस में यू कैन नॉट डू दैट, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ हर वर्किंग विद नंबर्स एंड विद सीए के बुक्स, जो सीए के रेफरेंस बुक्स होते हैं जो जनरली सीए लोग रेफर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सीए आल्सो व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, फाइल्स एंड ऑल, उससे सराउंड करके आप उसका एक फोटो क्लिक कर सकते हो और उसे अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। दे आर 110 वेज आप अपना विजन बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो आप पे है, आपकी सोच पे है। यू हैव टू थिंक 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 एंड देन यू हैव टू रीच दैट स्टेज जहाँ पे आप अपना क्रिएट कर सको विजन बोर्ड। इट इज इवन मतलब कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे किसी ने हमारे उसमें पूछा था कि कैसे वो विजन बोर्ड बनाएंगी अपने डॉटर के बाहर स्टडीज के लिए जाते हुए का, कि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो उनकी डॉटर बाहर जाए इंडिया से स्टडी करने के लिए। तो उसके लिए जवाब ये आया था कि उनको पहले कंट्री डिसाइड करना है कि कौन से कंट्री पे उनको स्टडी करना है, वहाँ के कॉलेज डिसाइड करना है, उस कॉलेज का पिक्चर, उस कंट्री का पिक्चर, मतलब उस कंट्री की जो लैंडमार्क है। जैसे अब इंडिया के लिए हम क्या बोलते हैं, ताजमहल इज अ लैंडमार्क फॉर इंडिया, ताजमहल अगर है तो मतलब आप इंडिया जा रहे हो। वैसे ही अगर इंडिया में भी कोई स्पेसिफिक सिटी है जहाँ पे आपको जाना है, तो हर सिटी का एक लैंडमार्क होता है। जैसे कैलकाटा हैज विक्टोरिया मेमोरियल, हमारे पास विधान सौधा है यहाँ पे, वैसे ही जयपुर में भी कोई ना कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, तो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पिक्चर किस जगह की है। तो वो जगह, वो मॉन्यूमेंट आप ले लो, उसे लगा लो, फ्लाइट्स के पिक्चर ले लो, बैगेज के पिक्चर ले लो, आपकी डॉटर ट्रैवलिंग कर रही है, आपकी डॉटर का पिक्चर लो, एंड उसके बाद में वर्क लाइक दैट, उस कॉलेज का पिक्चर लो, उस कॉलेज की डिग्री का पिक्चर लो जो आप चाहते हो। तो जितने पिक्चर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड अब तो आपके पास इंटरनेट है, अब तो आपके पास में इतने टूल्स हैं, इंटरनेट में इतने एप्स है, एंड रजनी जी आप तो कमाल हो क्रिएशन में, फोटोज में, तो इट इज अ मतलब क्लिक 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 एंड आपका तो काम हो जाएगा। तो यस, आपको सोचना है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपना विजन बोर्ड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल गो अबाउट इट। थैंक यू। जैसे मैंने ताज का जब विजन बोर्ड बनाया है, उसमें मैंने ताज की प्रॉपर्टी का तो पिक्चर लगाया ही है। और ताज इज ऑल्सो फेमस फॉर देयर मॉर्निंग पिकनिक्स, जब वो सफारीज पे लेके जाती है अपने, तो वो पिकनिक, वो सॉर्ट ऑफ एक ब्रंच का आपको पैक करके देती है, ताज का जो स्टाफ होता है वो आपको पैक करके देता है, एंड यू हैव दैट ब्रेकफास्ट इन द ओपन। तो उसके वो फेमस फीचर होते हैं कि वो दो फ्लास्क देगा, उसके साथ फ्रूट बास्केट देगा, उसके साथ में मतलब ये एक केन का बास्केट रहता है जिसमें सब पैक रहता है। तो मेरा विजुअलाइजेशन में मैंने वो पिक्चर ताज के साइड पे जाके कट की है, एंड आई हैव पुट इट देयर बिकॉज इतना है कि मुझे ताज में ही रहना है, तो मुझे यूनिवर्स को बताना है कि आई वांट टू स्टे एट ताज इन कान्हा नेशनल पार्क। तो मैंने इतना सॉलिडली उसको लिया है कि सारा कुछ डाल दिया, जितना मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ये ताज का ये पर्टिकुलर चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वैसे आप जितने पर्टिकुलर हो सकते हो अपने विजन बोर्ड को लेके, आप जितने पिक्चर्स अपने लिए बना सकते हो, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू गेट एंड यू हैव टू मेक। एंड अभी रिसेंट में अगर 20 days टाइम है आपके पास में, आई एम देयर, ऐसे भी आई एम अवेलेबल, मैं कहीं जा तो रही हूँ जो, बिकॉज यू नो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, तो आप कभी भी मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। अभी जूम पे पूछ सकते हो, देन यू कैन आस्क मी ऑन फोन कॉल्स। यहाँ पे हम जितने भी जन है, वी नो ईच अदर समहाउ और द अदर। तो यस, आई विल हेल्प यू आउट इन योर विजन बोर्ड और इन योर मैनिफेस्टेशन। कहीं आप कुछ भूल जाए इन योर ड्रीम लिस्ट, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेटिंग योर पर्टिकुलर ड्रीम, तो जस्ट आस्क मी टुमारो। और अगर आपको सबके सामने नहीं पूछना है, तो यू कैन गिव मी अ मैसेज एंड वी कैन फिक्स अ टाइम टू कॉल ईच अदर एंड देन वी कैन टॉक। इट इज फॉर एवरीवन जो भी है यहाँ पर, कि अगर आप लोगों को किसी सब, बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो वी डोंट वांट टू डिस्कस in front of everyone, but
किसी एक के साथ तो आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा. तो yes, if you trust me enough, then you can just call me and discuss your dream so that it is proper, so that you don't have any glitches in it. So it is your wish. आपको कैसे बढ़ना है इसके लिए आगे. Okay, everyone. Priyanka, you have any issues? Priyanka, are you there or you're sleeping? Sweetie. ठीक है. I don't think she's online. चलो फिर anyone else? Ranjana, Seema, Kanchan. So, okay then, we will say bye to each other. Okay. Thank you everyone for being there. Bye Thank everyone. you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye.